Hello students. Students, in the last video we have studied about the atomic number and mass number. Okay, and we have seen their definition also. Atomic number, the number of electron or proton in an atom is known as the atomic number, because we know that in an atom always contains the equal number of proton and electron. Okay, for example, sodium, the atom that have the 11 proton and 11 electron. So this number is known as the atomic number, which is represented by the Z. Okay, and the number of proton and neutron present in the nucleus of an atom is known as the mass number. Okay, which is represented by the A. जो अपन ने देखा था उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अपन A से रिप्रेजेंट करते हैं. A is known as the mass number, which is the number of proton plus neutron in atom. If you have given, अगर हमें क्या दे रखा है? If you have given the number of proton, like you have given the number of proton 12 and number of mass number, the mass number of that atom, which is given 24, and what you have asked about the number of electron and number of proton, number of neutron. Okay, then how you can tell about this? अगर हमें मास नंबर दिया हुआ है, मास नंबर यू हैव गिवन, so we know the mass number means A means प्रोटॉन का नंबर तुम्हें दे रखा है. प्रोटॉन है किसी, प्रोटॉन हमें दिया है 12 और मास ऑफ एन एटम यू हैव गिवन 24. दैट मीन्स A is 24. A is equal to P plus N. Okay, so the value of A is 24 and the value of P means proton, that is 12, and you have asked about the number of neutron. Easily you can tell about this. Neutron is equal to 24 minus 12, so the number of neutron will be 12. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? इसमें 12 हो जाएगा. तो अगर हमें न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन का नंबर हम कितना बता देंगे? ये 12 होता है. एंड यू हैव आस्क्ड व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम. इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा? वी ऑलवेज नो दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल इन एन एटम. किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर उतना ही होता है जितना उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर होता है. सो दैट दे आर इलेक्ट्रिकल, दे आर नोन एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इसीलिए हमें उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जाता है एटम्स को, क्योंकि पॉजिटिव, दे बोथ हैव द चार्जेस. प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, बट न्यूट्रॉन हैव नॉट एनी चार्ज. सो देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ, एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूट्रॉन से न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, क्योंकि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है. तो अगर हमें इनमें से कोई भी चीज़ दे रखी है तो हम क्या बता सकते हैं? उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर बता सकते हैं, हम उसका न्यूट्रॉन का नंबर बता सकते हैं. ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं. अगर हमें ये बोल दिया गया यू हैव गिवन ए एटम विच हैव an atom which have number of electron that is 11. okay, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 11. got it? okay, and you have asked the number of neutron. Number of neutron you have given, neutron is 23. okay, number of neutron you have given 23. now you have asked the number of proton, and the total mass of them, number of neutron is 12. okay, so total mass of an atom. got it? So we know the formula that A is equal to P plus N. P is a proton, N is a neutron, and mass. Now you have asked mass number and neutron number. Proton you have given 11, and proton and neutron you have given, that is 11 or 12. So we can get the mass number, that is
11 और 12 23, मास नंबर तो आ गया 23. एंड नाउ यू हैव आस्क्ड द नंबर ऑफ number of proton also not given to you, so this is a question mark and this is also a question mark. Now how you can get the mass of an atom? We know the mass of an atom is carried out by the sum of proton and neutron. प्रोटॉन न्यूट्रॉन. अब हमें प्रोटॉन का नंबर नहीं पता लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर पता है और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का नंबर जितना भी है उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर होगा. तो इलेक्ट्रॉन हमें कितने दे रखे हैं 11 मीन्स प्रोटॉन भी कितने हैं हमारे पास 11. सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 11 है, द मास विल बी 23. सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनके दो चीज़ें हमें अपने पास प्रोवाइड है तो बाकी की दो चीज़ें हम निकाल सकते हैं. मास नंबर, प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर और हमारे पास न्यूट्रॉन का नंबर. So this is the numerical based on the number of electron, proton and neutron and their mass number of an atom. After that the nucleons, the things which are present in the nucleus of anything है ना, लिविंग के भी न्यूक्लियस में भी हो, सेल के न्यूक्लियस में हो या अपन एटम के न्यूक्लियस की बात करें तो भी अपन उनको क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स. तो सो प्रोटॉन and neutron are present in the nucleus of an atom, so this is known as the nucleons. Okay, तो इनको क्या बोल देंगे अपन, न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं. गॉट इट. तो ये कहलाए अपने पास न्यूक्लियॉन्स. इसके बाद हमारा जो बच जाता है वो दो चीज़ें हैं इस चैप्टर की जो लास्ट बचती हैं. एक तो हमारे कहलाते हैं आइसोटोप्स, और दूसरे हमारे कहलाते हैं आइसोबार. क्या कहलाते हैं, आइसोबार. अब पहले हम बात करते हैं किसकी, आइसोटोप्स की. आइसोटोप्स क्या होते हैं, कई बार क्या होता है मोस्ट ऑफ द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द नेचर, कुछ उन्हीं की जो परसेंटेज है कुछ कम अमाउंट में और कुछ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं. कुछ है वो मोस्ट एविडेंट रहते हैं यानी कि मैक्सिमम परसेंट में रहते हैं, उन्हीं को हम काम लेते हैं, लेकिन उनकी लिटिल बिट परसेंट है वो किसी दूसरी फॉर्म में भी अपने को मिल जाती है. तो वो कहलाते हैं आइसोटोप. मतलब अल्टीमेटली अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं द एटम विद सेम with equal number of atoms which have equal number of you can say atomic number, है ना, which have same atomic number. you कह सकते हो आप which have same atomic number and different atomic mass. Different atomic mass are known as the isotopes. एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन. मैं अगर बात कर रही हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन अपने को 3 फॉर्म में मिलता है. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं. ठीक है, हाइड्रोजन एक तो खुद है, उसके 2 आइसोटोप और हैं, तो ये तीन आइसोटोप्स अपन इसको बोल सकते हैं. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमेशा क्या रहता है, वही रहेगा, सेम है. ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है. इसको बोलते हैं प्रोटोनियम, एक सिंगल है. इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम. इसमें 3 है इसका एटॉमिक मास. तो व्हाट इज डिफर देयर, ओनली मास विल बी डिफर, है ना. सिर्फ क्या डिफरेंस है इसमें, मास का डिफरेंस है. और एटॉमिक नंबर क्या है, ये एटॉमिक नंबर सेम है. तो ये जो इस टाइप के जो एटम्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स. क्या कहलाते हैं ये, आइसोटोप्स कहलाते हैं. अब हम आइसोटोप्स के एप्लीकेशन की बात करें तो आइसोटोप, जो यूरेनियम आइसोटोप है वो न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं उसमें एज ए फ्यूल काम में लिया जाता है. दूसरा जो इनके जो कैंसर के इलाज के लिए तुमने देखा होगा कोबाल्ट के आइसोटोप्स, उनकी रेज है वो डाली जाती हैं उनको जम्स को मारने के लिए. तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी इनके कोबाल्ट के आइसोटोप्स को यूज़ में लिया जाता है. इसके अलावा गोइटर डिजीज़ जो हो जाती है, जो गले में हो जाती है, गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए भी किसके, आयोडीन के आइसोटोप को काम में लिया जाता है. ये कुछ एप्लीकेशंस हैं या कह सकते हैं ये इनकी ये इम्पोर्टेंस है आइसोटोप्स की. ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, आइसोबार की. आइसोबार इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा. क्या होगा उसमें एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होंगे लेकिन मास विल बी द सेम. ओके, आइसोबार
बार की बात करें हम तो क्या होंगे इसमें एटॉमिक नंबर तो क्या होंगे डिफरेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट होंगे। मास नंबर सेम। एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ठीक है। आर्गन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 होता है और मास कितना होता है इसका 40। गॉट इट। अपन ने देखा था एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं, मास हम ऊपर लिखते हैं, इधर भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस साइड में भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट और राइट का इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऊपर होना चाहिए मास। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैल्शियम। नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20 एंड मास ऑल्सो 40। तो ये देखो, ये दोनों एटम जो हैं इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो एटम से डिफरेंट हो गए, तो डिफरेंट एटम होगा, उसमें सेम एटम होगा, इसका डिफरेंट एटम विद सेम एटॉमिक मास। ओके, इनके एटॉमिक मास सिर्फ क्या है सेम है और एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट एलिमेंट हो गए। तो इस टाइप से जो एलिमेंट्स होते हैं इनके मास सेम होते हैं, इनको बोलते हैं अपन क्या आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। लाइक द आइसोटॉप्स, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द आइसोबार, अगर हम आइसोबार के एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आइसोबार्स होते हैं इनका जो ये कैसे डिफरेंट एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ऑर्बिट्स में ये एनर्जी लेवल को बताते हैं ना। तो ये एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको करना चाहें या फर्दर इसके यूज़ के बारे में बात करना चाहें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्चुअली ये बताते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन डिफरेंशिएट द एटम्स, इनके अपन एटम्स को क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं आइसोबार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक थे हमारे वो हमने कर लिए हैं आइसोटोप और आइसोबार। इसके अलावा सॉरी आई एम हैविंग अ बुक, इसके अलावा हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब हमारी बस्ती है इसमें एक्सरसाइज बस्ती हैं, ठीक है। तो इसके आइसोबार के बहुत सारे एप्लीकेशंस है नहीं, इसमें कोई ज़्यादा एप्लीकेशन पे इसमें फोकस नहीं किया गया है, बस यही है कि इनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, तो ये डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो गए, मास नंबर इसके सेम होते हैं, इनको आइसोबार बोलते हैं। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स को कंसिडर करने के लिए ये अलग अलग उसको बता सकते हैं अपन इजीली। तो ये नंबर के अकॉर्डिंग क्या है अरेंज करने में हेल्प हो गई थी। मास नंबर जो सेम हुए थे वो पीरियोडिक टेबल में जो पुरानी अपन पढ़ेंगे आगे 10th क्लास में उसमें ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द आइसोबार। नाउ यू हैव गिवन द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, अगर तुम्हें कोई भी आइसोटोप्स अगर दे रखे हैं और उनकी जो परसेंटेज अमाउंट जो है कि कितने हैं, मान लो तुम्हें एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स। ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 35 होता है, तो सेम एटॉमिक नंबर आर देयर, द मास 79 एंड 81 एंड द परसेंटेज विल बी 49.7 एंड 50.3%। ये तुम्हें दे रखा है। तो इनका ये कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमीन। एवरेज मास अगर अपने को दोनों का निकालना है तो वो हमारे पास कितना आएगा। एक्चुअली में एवरेज क्या होता है लगभग 80 आएगा। दोनों के जो मास होते हैं उनको अगर अपन ऐड कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो मास हमारे पास निकल के आ जाता है। तो एक तो ये डायरेक्ट निकालने का जो मेथड है, मान लिया हमारे पास ये दे रखा है ब्रोमीन दे रखा है ना, और ब्रोमीन 35 79 ब्रोमीन 35 81, इन दोनों को अपन करेंगे 79 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 160/280 है ना। और एग्जैक्ट इनकी परसेंटेज दे रखी है, एक तुम्हारा 49.7%, एक 50.3% में दिया हुआ है। उनकी परसेंटेज के बेसिस पे अगर हम निकालना चाहें तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो भी मास दिया हुआ है ना, द गिवन मास ऑफ एन एटम multiplied by the percentage of that atom in the nature divided by 100 plus given mass of another atom है ना, and multiplied by their percentage and divided by 100।
तो अपन इन दोनों को क्या करेंगे, इनका परसेंटेज निकाल के और अपन क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है हमारे पास वो क्या कहलाता है, उसका मास कहलाएगा, एवरेज मास। ठीक है, आई विल गिव यू द solution in the notes also. So many questions which are given there. See, compare the properties of electron, proton and neutrons. We have done this in the chapter also, that electrons have the negative charge, proton have positive charge, neutron have not any charge. They are known as the canal ray, or you can say they have the different atomic difference in their charges, चार्ज वैल्यू, देयर मास ऑल्सो। तो कंपैरिजन अपन उसमें करेंगे जो अपन ने फर्स्ट नोट्स में अपन कर चुके हैं। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे जे थॉमसन मॉडल? जे जे थॉमसन के मॉडल की लिमिटेशन क्या थी? वी ऑल नो अबाउट द लिमिटेशन ऑफ दैट। ही सेड दैट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड एंड दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम। किसी भी एटम में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो अलग अलग अपने पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस में रहते हैं, ये हमें पता है। बोर मॉडल अपन ने अभी क्या है, बोर मॉडल की सारी जो चीज़ें थी, बोर ने क्या बताया एटम के बारे में, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो होते हैं वो सारे अलाउ नहीं करता है। एटम एनर्जी है वो रेडिएट नहीं होती है किसी भी एटम के अंदर, और इसी के साथ में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग ऑर्बिट में होता है, उसकी वैल्यू है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन क्या थी? ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, उनकी स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था। उसके बाद ये है कंपेयर ऑल द प्रपोज मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। इसमें जो भी मॉडल हैं उनका जो कंपेरिजन है वो दिया हुआ है। थॉमसन ने क्या बताया, फिर उसके बाद हमारे पास कौन आए, थॉमसन के बाद में रदरफोर्ड का मॉडल अपन ने पढ़ा था, रदरफोर्ड के बाद अपने बोर आए थे। तो जो जो उनकी कमियां आती गई वो उसमें जो भी है उनको कमियों को दूर करते गए, और अपने जो भी नए जो डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी उन्होंने करी, जो भी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने देखा वो सारे हमारे सामने रखते गए। तो धीरे धीरे एटमिक स्ट्रक्चर के अंदर या एटम में क्या होता गया, बहुत सुधार होता गया, वो हमारे सामने रखा। इसका कंपेरिजन है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगी। Summarize the rules of writing of distribution of electron. That is the Borberi, you can say the scheme, and you can follow the formula, that is the 2n square. Okay, the formula 2n square के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें क्या था, n is the number of orbit। तो n की जगह हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर अब इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है तो अपन फर्स्ट की जगह फर्स्ट रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2:1। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, देन 18, देन 32। तो ये अपन बोरबेरी स्कीम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने इलेक्ट्रॉन्स का देखा था। तो ये अलग अलग सेल में कर सकते हैं अपन। डिफाइन द वैलेंसी बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन की वैलेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैलेंसी अगर किसी भी एटम की निकालनी है तो हमें क्या याद होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। सिलिकॉन हैव द एटॉमिक नंबर 14 एंड ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाई ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो लूज और गेन वो करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कहलाते हैं, उसकी वैलेंसी कहलाती है। क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के का किसी भी ट्रांसफर में या इधर से उधर जाने में किसी भी एटम को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। मूवमेंट सिर्फ किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अपन किसका देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, 14 इलेक्ट्रॉन आर देयर इन फर्स्ट ऑर्बिट, यू कैन फिल 2, सेकंड ऑर्बिट यू कैन फिल 8, नाउ यू हैव द 4 इन द लास्ट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आर देयर। तो अब इसमें कितने हैं, लास्ट 4 हैं। तो इसमें कितने होने चाहिए, 18, या तो 18 हो, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू एक रूल दिया गया था ऑक्टेव रूल, उसके अकॉर्डिंग इसमें 8 होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, 8 पूरा करने के लिए 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है। तो इसकी वैलेंसी जो होती है वो +-4 अपन बता सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो ये कहलाई इसकी वैलेंसी। गॉट इट। और एक्चुअली में इस तरह की वैलेंसीज में दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, उनको अपन किस में रखते हैं, मेटलॉइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, मेटलॉइड्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 8 आता है। फर्स्ट ऑर्बिट यू कैन फिल द 2 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग आर 6 आर देयर। टू कंप्लीट द ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट कैन कैरी द 8 इलेक्ट्रॉन्स।
तो इसमें 8 कैरी करने के लिए क्या करेगा, 2 किसी से ये ले लेगा, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने से इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे और इसका ऑर्बिट कंप्लीट, इट बिकम द स्टेबल। और इसके लिए क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने एक्स्ट्रा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस और हाउ मेनी 2 आती है, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी -2, तो ये कहलाती है वैलेंसी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 6 है। तो दिस इज आवर द वैलेंसी। वी हैव in this video we have done the 7th question of this chapter. Another question I will provide in the next video. I will provide the solution of this question and the notes of remaining topic. So you have to do in your fair notebook and you have to watch the video to understand all the problems based on this topic. Okay, thank you.